Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 15th lectures of Basics of Industrial Engineering. So, uh, in yesterday we start another new chapter in industrial engineering, which is the productivities and the work studies. Right? In the previous series of the lecture, we tried to understand the basic things about the productivity. Now, what is the meaning of productivity? How the productivity is influence in the any organizations. Then, what is the basic difference between the productivity and the productions? Then we also discuss various constraints or some kind of the problems which is affect during the implementations of the productivity. Then we also try to discuss the two basic things, like we can say that the types of productivity, which is the partial productivity and the total productivity. So these things we can discuss in the yesterday's lecture. I hope you understand thoroughly the yesterday's lecture. So if you are catch up all the things about the yesterday's lecture, then we can start the another new chapter from this chapter, which is the another new topic from this chapter, which is the work study. But before understand the basic things about the work study, you have to properly understand what is the influencing of the productivity in any kind of the organizations, right? Suppose you are applying some kind of the input. The productivity is basic the ratio of the input to the output. How many raw material you are inputting, right? And what kind of the, how many product we can got in the manner of the in the mannerism of the output. So these are the basic kind of the productivity. And whenever we are talking about the only the term which is regarding the production, which is only totally regarding the with the perspectives of the output only. Whenever we try to understand the relationship between the productivity and the productions, the production is only focusing on the output. How many product you can produce, right, as in the form of the output during the day one process or during the first shift. So this is the productions where whenever we are talking with respect to the input and some kind of the analysis from the with the basics of the input to the output ratio. So that is the productivity. So now we can start the another new concept or another new topic from this chapter, which is about the work study. So let's start the discussions over the work study. So it is a generic term for those techniques, method study and work measurement which are used in the examinations of the human work in all its contexts. So basically the work study is the kind of the technique which is including the method study and the work measurement. So basically you can understand now the method study and the work measurements are the part of the work study. So the work study is a big title. Under that, we are considering the two part of that techniques, which is the one is the method study and second, which is the work measurement. Now, what all these two are doing in this technique, we can use this technique like the work study. We can use for the examinations of the human work. So with the help of the work study, we can examinations of the human works in all its constant, राइट हम किसी भी परिप्रेक्ष्य में उसको अगर ह्यूमन वर्क को एग्जामिन करना है तो हम इस वर्क स्टडी का यूज कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिक थिंग्स अबाउट द वर्क स्टडी एंड विच लीड सिस्टमेटिकली to the investigations of all the factors which affect an efficiency and economy of the situation which is being reviewed in order to effect the improvement. सो बेसिकली वर्क स्टडी जो है वो क्या है, एक ऐसा टेक्निक है
जो ह्यूमन वर्क को एग्जामाइन करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो ह्यूमन वर्क को एग्जामाइन करने के लिए जो है वो इसके अंदर दो कंसेप्ट है, फर्स्ट विच इज़ द मेथड स्टडी एंड सेकेंड विच इज़ द वर्क मेजरमेंट। तो वर्क मेजरमेंट विच इज़ स्टडी द ह्यूमन वर्क रिगार्डिंग द टाइम aspect, right? So and work study which is analysis of the process. The one is the analysis of the process oriented thing, one which is the analysis of the time oriented thing, in which the work study which is lead systematically. तो ये क्या कर रहा है कि वर्क स्टडी जो है वो एक सिस्टमेटिकली मैनर्स के अंदर जो है वो काम कर रहा है टू इन्वेस्टिगेट ऑल द फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स है प्रोसेस के रिगार्डिंग, टाइम के रिगार्डिंग, वो सारे फैक्टर्स को जो है वो एक सिस्टमेटिकल मैनर के अंदर जो है इसका इन्वेस्टिगेशन इस वर्क स्टडी के अंदर होता है, विच इज़ अफेक्ट द इफ़िशेंसी। जो फैक्टर्स जो है उसकी इफ़िशेंसी को अफेक्ट करते हैं वो उसको प्रॉपर तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशंस करेगा, राइट? एंड इकोनॉमी ऑफ द सिचुएशंस, उसके साथ क्या परिपेक्ष उसका दूसरा एक पॉइंट इसके एक क्या निकल के आ रहा है, तो एक तो कि जो भी सारे फैक्टर्स जो है उसकी इफ़िशेंसी को अफेक्ट करेंगे, उस सारे फैक्टर्स को वो इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके साथ उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को, इस इकोनॉमिकल सिचुएशन को भी जो है वो रिव्यू करेगा कि इज इट वर्किंग इन द इकोनॉमिकल मैनर और नॉट, राइट? इन ऑर्डर टू इफ़ेक्ट द इम्प्रूवमेंट, जिससे हम लोग इस इफ़ेक्ट से हम लोग काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्क स्टडी। तो आप समराइज करके हम बात करें तो वर्क स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर दो सब स्टडी प्रोसेसेस जो है, या फिर ऐसे कर सकते, वर्क स्टडी इज़ ए process or work study is a technique in which the two techniques are the sub headings, which is the first which is the method study and second which is the work measurement. These all techniques are used to examine the human work for its all its context, वो उसके सब परिपेक्ष को स्टडी करने के लिए जो है, ह्यूमन वर्क को स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए जो है ये यूज़ होता है। इसके अंदर ये पूरा प्रोसेस जो है वो, ये पूरा टेक्निक जो है वो सिस्टमेटिकली जो है वो लीड करता है, ऐसे सभी एस्पेक्ट या फिर फैक्टर को स्टडी करता है जो उसकी इफ़िशेंसी को जो है वो अफेक्ट करते हैं, और साथ में उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशंस को भी रिव्यू करता है। तो ये सारे पूरे स्टडी को जो है वो वर्क स्टडी जो है वो बोला जाता है। तो आई थिंक मैंने इसको सबसे आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की इस पूरे प्रोसेस को आपको कोशिश की है। नाउ द वर्क स्टडी हैज़ अ टू कंपोनेंट्स। हियर यू कैन सी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स। द वर्क स्टडी हैज़ अ टू बेसिक कंपोनेंट। द फर्स्ट विच इज़ द मैथड स्टडी टू सिंप्लीफाई द जॉब। इसके अंदर क्या होता है सॉरी, द मैथड स्टडी के अंदर वी आर सिंप्लीफाइंग द जॉब एंड डेवलप अ मोर इकोनॉमिकल मैथड ऑफ डूइंग द वर्क, राइट? मैथड स्टडी के अंदर जो है वो हम लोग क्या रिव्यू करेंगे, तो पहले तो सबसे पहले हमारा पहला टास्क हो जाएगा कि हम अपने जॉब को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, उसके सारे प्रोसेस को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसके सारे इकोनॉमिकल जो है वो एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे, और एक ऐसा अल्टरनेटिव जो है वो प्रोसेस, मेथड, टेक्निक को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर ऑलरेडी है तो उसको चूज़ करने की कोशिश करेंगे, जिससे अपना प्रोसेस जो है वो और इकोनॉमिकल मैनर में वर्कआउट हो सके। दिस इज द मैथड स्टडी। तो आप समझिए मैथड स्टडी क्या कहना चाहता है। द मैथड स्टडी इज अ टेक्निक इन विच वी आर सिंप्लीफाइंग द जॉब, its process or its techniques, and we are trying to find out the alternative solutions for doing these jobs in the manner of that the economical method of doing the work. इससे हम लोग इसका एक इकोनॉमिकल मेथड जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्क मेजरमेंट? सो वर्क मेजरमेंट इज अ काइंड ऑफ द टाइम स्टडी। जो पहला प्रोसेस था मेथड स्टडी, वो प्रोसेस का अल्टरनेटिव या फिर उस जो पूरा प्रोसेस है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर, उसका एक अल्टरनेटिव जो है वो सोर्स या फिर रिसोर्स या फिर
डेवलप करने की जो है इसके अंदर प्रोविज़न इसके अंदर आपको दिया गया है। तो दूसरे के अंदर जो है वर्क मेजरमेंट जो है वो टाइम रिगार्डिंग जो है स्टडी करता है, टाइम स्टडी टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग एन ऑपरेशंस। हर एक ऑपरेशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 12 या 15 जो है वो ऑपरेशंस लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, राइट। तो एक सारे ये 12 या 13 ऑपरेशंस के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड करेंगे। उस स्टैंडर्ड टाइम को जो है वो मद्देनज़र जो है वो आपको ये हर एक ऑपरेशंस करना है, राइट। हम लोग ये टाइम जो है वो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड कैसे होता है, तो हर एक ट्रायल एंड एरर से जो है वो एक परफेक्शंस के साथ जो एक आदमी जो पूरी इफ़िशेंसी के साथ 100% इफ़िशेंसी के साथ विदाउट एनी एरर जो है वो एक कम से कम जो है वो टाइम में वो टास्क करके देगा विच इज़ कैलकुलेटेड एज अ स्टैंडर्ड टाइम, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू proceed all that part of that processing which is used in that product. So with this two study our major focus is on we can increase the productivity. तो अब जो है वो हम लोग पहले वाले टॉपिक के ऊपर ये सारा वर्क स्टडी जो है जिसके अंदर दो पार्ट है, फर्स्ट विच इज़ दी मेथड स्टडी जिसके अंदर हम जो प्रोसेस हो रही है उसको एनालाइज करके उसके सारे प्रोसेस को एनालाइज करके अगर ऐसा कोई प्रोविज़न है कि इसका हमारे पास कोई अल्टरनेटिव जो है वो प्रोसेस सॉल्यूशन है उसको यूज़ करके उसको कम खर्च में अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो एनालिसिस जो है वो हम लोग मेथड स्टडी के अंदर करते हैं। फिर एक स्टैंडर्ड टाइम अगर हर एक प्रोसेस के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डेवलप करके उस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर जो है वो प्रोसेस को ख़त्म करने की जो है वो पूरा एक प्रोसेस जो है वो हम लोग वर्क मेजरमेंट के अंदर करते हैं। और दोनों को जो है वो यूज़ करके हमारा एंडलेस ऑब्जेक्टिव जो है वो कौन सा है, तो कि हमें किसी ना किसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करनी है। वी हैव टू अचीव द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ अवर प्रोडक्ट। So these are the basic objectives of the work study, right? So let's start the discussions over the another new topic from the slides. So the work study is comprises of the two study. The first, which is the method study, it is a systematical recording and a critical examinations of the existing and a proposed way of doing work. तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मेथड स्टडी के अंदर एक सिस्टमेटिकल रिकॉर्डिंग होता है जो एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन से होता है, राइट। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और जो उसके प्रपोज्ड वे है, राइट। अगर आपके पास ये नहीं तो ये सॉल्यूशंस है, तो इसको यूज़ करके जो है वो हम लोग ये काम कर सकते हैं एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग अ ईजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड्स एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट, राइट। इससे जो है वो हम कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं और उसको अप्लाई करके इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ईजी बना के मोर इफ़ेक्टिव बना के इस मेथड को हम लोग मोर इफ़ेक्टिव मेथड जो है वो बना के उसका जो कॉस्ट है वो अल्टीमेट कॉस्ट जो है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेथड स्टडी। So next, which is the work measurement. Now what is about the work measurement? The work measurement, or we can say that the time study, it is the applications of the technique. ये जो है वो एक ऐसा एक एप्लीकेशन है किसी टेक्निक का, राइट, विच इज़ डिज़ाइन टू एस्टेब्लिश द टाइम, जो एक टाइम के लिए डिफाइन किया जाता है for a qualified worker to carry out a specific job at a defined level of performance. ये इट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द टेक्निक। ये जो है वो एक टेक्निक का एक एप्लीकेशंस है विच इज़ डिज़ाइन। वो किस लिए डिज़ाइन किया गया है? टू एस्टेब्लिश द टाइम, जिससे हम लोग एक टाइम जो है वो एस्टेब्लिश कर पाए फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर, राइट। जो भी क्वालिफाइड वर्कर है उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिज़ाइन कर पाए या फिर एस्टेब्लिश कर पाए टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक जॉब। हर एक जॉब को, हर एक प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो होना चाहिए एट अ डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जिससे एक बेटर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के साथ एक स्टैंडर्ड टाइम को एस्टैब्लिश करके जो है वो सारे वर्क अगर हम लोग करेंगे तो फिर वो एक टास्क जो है वो एक प्रोडक्ट का जो एक ख़त्म होने का जो है वो टाइम है वो एक फिक्स टाइम जो है वो हमें मिल जाएगा। Now the work study procedure.
तो कैसे पूरा वर्क स्टडी जो है वो किया जा सकता है? फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट दी जॉब, राइट? सबसे पहले जो है वो आपको किस जॉब के ऊपर ये वर्क स्टडी जो है वो अप्लाई करना है, वो आपको जॉब जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. देन यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल दिस एग्जिस्टिंग प्रोसेस और एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ दैट जॉब. सो सबसे पहले जो है वो आपको सारे उसके जो है वो एग्जिस्टिंग अभी जो किस तरीके से वो काम कर रहा है, वो सारे चीज़ को जो है वो सारे मेथड्स, सारे टाइम, सारे प्रोसेसिंग टाइम को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. देन यू हैव टू एग्जामिन ऑल दिस थिंग in which process you are facing some kind of the more time as compared to the you have the alternative solutions. You have to examine all these things, and you have to also think about that, is it possible you have any kind of the alternative options for this process. Then you have to develop, right? Suppose you are getting some kind of the alternative solutions after the examinations of or examinations and recorded data. Then you have to develop the alternative way of this process, and you have to implement that. You have to at least try once time with this new developed methods, and you have to measure, or you have to, I think you have to compare of the existing time with the developed process time, right? As you can measure after getting the result, you have to define that, right? This is the way of doing the work, and this process is completed uh, uh, this process, with using this process you can complete this task into the this kind of the time. And you have to now, after the succeeding of that all the procedure, you have to install that process, or you can replace that process. And now you, every time you have to maintain this all this thing during the whole procedure of the product productions. Now, this is the procedure of the implementations of the work study. I hope you all get these steps of this work study procedures, right? Next, which is what are the influence of the methods and time study. इसकी क्या influences है method और time study के in the productions activities. So suppose we are in the center, as you can see that the method and time study is in the center of that chart, right? And we are measuring some kind of the, we are analysis some kind of the influence of the method study and the time study. So first, with the kind of the productions control, with respect to the method study, the method is analyzed, how method is analysis is shows that how the work is best accomplished. किस तरीके से ये काम को जो है वो प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर जो हम लोग ये चीज़ इसको एनालाइज करके बता सकते हैं कि कैसे जो है उस मेथड को एनालाइज कर से कैसे इस काम को जो है वो बेटर तरीके से किया जा सकता है. देन क्वांटिटी एंड द क्वालिटी कंट्रोल इज रिले on time standards and the process analysis, right? Then the industrial relationships. A good labor relationship is the results from the equitable wages which is based on the work content. आप अच्छे वर्कर को जो है उस काम के रिगार्डिंग जो है वो वर्कर को भी उतना वेजेस जो है वो मिलेगा, और इतना उस जो वर्क कंटेंट है उस हिसाब से जो है वो आप उसका वेजेस जो है वो डिसाइड कर सकते हैं. दैन द कंट्रोलर विच इज़ द स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड टाइम, राइट? आप स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो है उस चीज़ का, उस प्रोसेस का, उस ऑपरेशन का जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो आप तय कर सकते हैं. Then with the manner of the engineering, we can say that a time standard which is indicate how long it should be take to do it. कितने कम टाइम में, राइट, पूरी इफ़िशेंसी के साथ, पूरा परफेक्शन के साथ आप इस टास्क को ख़त्म कर सकते हैं. नाउ द प्रोडक्ट एंड द डिज़ाइन इज इनकॉर्पोरेट द मेथड एंड प्रोसेस प्लानिंग. इससे आप जो है वो प्लानिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से इसका प्रोसेस प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं. एंड lastly, with the regarding of the cells, the product cost is largely a functions of manufacturing method.
राइट। प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है वो एक बड़े पैमाने के ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग मेथड जो है उसका एक फंक्शंस हैं एंड द मेजरमेंट कंट्रोल, और किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है वो इसके साथ जो है वो पूरा प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो दोनों तरीके से उसके साथ रिलेक्ट है। जैसे आप किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग मेथड यूज़ कर सकते हो, किस तरीके के आप मेजरमेंट्स यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है। So these are the influence of the time studies and method studies. Now the work contents, the basic work contents or excess work contents. So the reason for excess work content is are the first which the defect in the design. जो एक्सेस वर्क कंटेंट है उसके क्या है, तो कि आपकी डिज़ाइन के अंदर डिफेक्ट है, विच इज़ द इनसुफिशेंट मैथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपके पास जो एक्सेस ऑफ वर्क होने के पीछे का क्या रीज़न हो सकता है कि आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग मैथड है वो इनसुफिशेंट है, इसके लिए जो है वो आपका एक्सेस वर्क हो रहा है। देन अ शॉर्ट कमिंग ऑफ द मैनेजमेंट्स, राइट। मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। देन द वर्कमैन एट्रीब्यूट्स, वर्कमैन के एट्रीब्यूट्स जो है वो प्रॉपर नहीं है। देन दिज आर द मैन्युफैक्चरिंग टाइम। ये एक एग्जांपल के साथ जो है वो आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि आपके पास सपोज़ कि टोटल वर्क कितना है और मैन्युफैक्चरिंग टाइम कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं किसी भी, ये आपने सब ने किसी न किसी, सपोज़ आपके पास एक छोटा सा एक मुझे लेथ के ऊपर एक ऑपरेशंस करना है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो है वो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ। तो आपके पास एक सपोज़ कि एक छोटा सा एक जॉब है जिसके ऊपर आपको थ्रेडिंग भी करना है, आपको टैपरिंग भी करना है, आपको उसके ऊपर नर्लिंग भी करना है। तो हर एक ऑपरेशंस के अंदर कैसा टाइम लगेगा उस हिसाब से जो है वो आपको आप पूरे एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेसेस के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे। इस तरीके से पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो है वो रिकॉर्ड होता है। तो अब जो मेथड स्टडी है, तो मेथड स्टडी को जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि एक कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे और आपको जो है वो ये वर्क स्टडी जो हमने स्टार्ट किया उसके अंदर जैसे आज हमने डिस्कस किया 2 पैरामीटर्स हैं, उस 2 पैरामीटर को लेके हम लोग उसके पूरा डिस्कशंस जो है मेथड स्टडी का और वर्क मेजरमेंट का कैसी कैसे टेक्निक्स है, कैसे हम लोग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोसेस के टाइम कैसे स्टैंडर्ड टाइम को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे सारे जो है वो फ्लो चार्ट्स है और फ्लो चार्ट को कैसे स्टडी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम लोग इसको समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई थिंक you are getting the proper thing from this lecture. If you have any kind of the doubts, you have any questions, you can ask me in the comment sections, so we will definitely sort out your questions in the next series of the lecture. After watching this lecture you have to write your enrollment number into the comment section, so it will be reflected as your online attendance. So please take it seriously, please write your enrollment number regularly. We are always monitoring this kind of things, who is mentioning your roll number is or not, right? So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video.